Good morning, students. Our today's topic is osmosis and osmotic pressure. Now, let's first distinguish between the diffusion and osmosis. So, what is diffusion? The spontaneous mixing of particles of solute and the solvent. मतलब दोनों टाइप के पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना, मतलब जो मोशन चल रहा है वो सोल्यूट का भी होगा एंड बेसिकली सोलवेंट का भी होगा टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर विच आर हैविंग द equal concentration on both the sides. Suppose let's take an example. In a beaker, first I put it the concentrated solution of copper sulfate. It is the concentrated solution of copper sulfate. Then I slowly put the dilute solution of CuSO4, copper sulfate, dilute solution of copper sulfate. So in both the cases, the here in concentrated the amount of solute is more than in the dilute CuSO4. यहाँ पे जो है सोल्यूट की कंसनट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिवली डाइल्यूट के केस में. सो इसमें क्या होने वाला, अगर हम दोनों सोल्यूशन में इक्वल कंसनट्रेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पे सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है. सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से सोलवेंट मूव करना स्टार्ट करेगा इधर की तरफ और यहाँ से सोल्यूट मूव करना स्टार्ट करेगा इधर की तरफ, और जब तक मूवमेंट चलती रहेगी जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है इक्वल नहीं हो जाती, सेम नहीं हो जाती ऑलमोस्ट. सो इसी प्रोसेस को हम बेसिकली डिफ्यूज़न बोलते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग मतलब क्या है, दोनों का आपस में एक साथ चलना, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी. यूँ नहीं है कि एक ही चीज़ चलेगी या सोल्यूट या सोलवेंट, नहीं, दोनों चीज़ों का मोशन आपस में रिलेटिव होता है. नाउ एक और डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो क्या हो सकती है, बेसिकली अगर हम सोल्यूट और सोलवेंट की टर्म्स में बात ना करना चाहिए, इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, देन बेसिकली द मूवमेंट ऑफ substance, it can be any substance, it can be solute or solvent, from higher concentration to the lower concentration. तो बेसिकली डिफ्यूजन की भी डेफिनेशन हो सकती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हुई किसी भी सब्सटेंस की, किस चीज़ के लिए, ताकि दोनों साइड में इक्विलिब्रियम बना रहे, कंसंट्रेशन जो है अल्टीमेटली सेम हो जाए, उसके लिए अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिफ्यूजन. Or we can say this, in this basically the movement of solute particles. Here solute particles are CuSO4, which can be noted as in the form of ions Cu2 positive and SO4 2 negative. So movement of these ions are going from concentrated CuSO4 to dilute CuSO4, and from dilute the solvent particles, which are water, solvent here is water, it is moving from the dilute CuSO4 to concentrated solution. Now we are talking about the osmosis. So but in case of osmosis, the difference is that we are restricting the flow of solute particles here. That means only solvent molecules can flow from one place to another. Only solvent molecules will move or permitted using a special type of membrane, here known as semi-permeable membrane. विच मीन्स क्या, सेमी मतलब आधी चीज़ों को ही परमिट करना, जो कि क्या हो रहा है, सिर्फ सोलवेंट को परमिशन है इधर से उधर मूव करने की, बट कि सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं है. क्योंकि बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, जो होल्स होने वाले हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के होने वाले हैं, ताकि क्या होगा कि जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं, जो कि विच आर सोल्यूट पार्टिकल्स, दे कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. So due to small gaps or holes in the SPM, we can say the SPM is semi-permeable membrane. Solute particles cannot move from one place to another.
Now let's suppose the same example as we considered in the case of diffusion, but with a special type of membrane here known as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane which permits only the movement of solvent particles. Now suppose here it is the concentrated solution, concentrated CuSO4 copper sulfate solution, and here it is dilute CuSO4 solution, dilute copper sulfate solution here. So in case of concentrated solution, we have seen that the quantity of solute is higher, and here quantity of solvent is higher, सो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर सोल्यूट और कंपेरेटिवली बात करें तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन जो है, कंपेरेटिवली बात करें सोलवेंट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी किस केस में, वो ज़्यादा रहेगी डाइल्यूट के केस में इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इसी के बिहाफ पे हम लोग बात करें कि मूवमेंट एक्चुअली में कहाँ से कहाँ होने वाली, जो हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने रेस्ट्रिक्ट करना है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, बट इट कैन परमिट द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। सो बेसिकली क्या होगा, सोलवेंट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से मूव करेगी चीज़ें कहाँ को, जहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम रहने वाली है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा ही होगा, बट यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ से फ्लो इधर को मूव करेगा ज़्यादा की तरफ, है ना, क्योंकि सोलवेंट का ही मूवमेंट अलाउड है हमें। तो यहाँ पे सोलवेंट जा रहा है तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट चलेगी और यहाँ से यहाँ सोलवेंट की मूवमेंट काफ़ी कम होगी और रहेगी बेसिकली दोनों केस में सोलवेंट की ही मूवमेंट रहेगी, दोनों केस में मूवमेंट ऑफ सोलवेंट ओनली। सो नेट फ्लो किधर की तरफ जाएगा, इधर जो है सोलवेंट की मूवमेंट कम है, इधर जा रहा है तो बेसिकली नेट फ्लो जो रहने वाला है, नेट फ्लो जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, वो रहने वाला है डाइल्यूट सॉल्यूशन से, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। सो देखा आप लोगों ने कि डिफ्यूज़न में जो है वो फ्लो उल्टा था इससे बिल्कुल, डिफ्यूज़न में फ्लो था कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ, यहाँ पे फ्लो है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। तो बेसिकली ऑस्मोसिस को हम लोग कह सकते हैं, अगर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी किस पे, सोल्यूट के पार्टिकल्स की मूवमेंट पे, तो फ्लो जो है वो उल्टा हो जाएगा बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। So by using the net flow we can say that we are talking about the net flow here, क्योंकि सोलवेंट का जो मूवमेंट है वो तो दोनों साइड है ना, बट नेट डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेट डायरेक्शन क्या होने वाली, द नेट फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, नेट फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स इज फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड solution here. So this is can be the definition of osmosis, net flow of solvent particles from less concentrated solution to high concentrated solution through a semi permeable membrane. We have to write the SPM also, semi permeable membrane. Without this osmosis cannot be proceed. So this is the definition of osmosis. Now let's discuss about the types of osmosis. There are basically two types of osmosis here. First is endosmosis, second is exosmosis. So if the solvent particles, if the solvent molecules or particles permitted by semi-permeable membrane to come out through the मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की वजह से बाहर निकल रहा है अगर वो चीज़, तो उसको बोलेंगे, सॉरी बेसिकली इट इज़ एक्सोस्मोसिस, इट इज़ एक्सोस्मोसिस, बाहर निकलना मेम्ब्रेन से, उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। एंड द अनदर वन इज एंडो, अगर बाहर निकल रहा है by using the semi-permeable membrane, though it is known as exosmosis. And the another one endo, if solvent molecules permitted by the semi-permeable membrane to get inside through the membrane, then this process is known as endoosmosis. This process is
endoosmosis. So basically, if we are talking about the examples here, so let's see the example. If I put the kishmish, or you can say the grapes in a pure water form, grapes in a pure water only, it is now pure water. And if I put grapes in a concentrated solution, like take an example of NaCl plus water. So in this case, when we put kishmish or grapes in a pure water, then it will swell. That is, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो पानी है वो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है. क्यों? क्योंकि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इस केस में अभी लो है, बाहर की कंसंट्रेशन लो है और अंदर की कंसंट्रेशन हाई है. रीज़न बीइंग, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन क्यों हाई हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ग्रेप्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो शुगर, और मेन कंटेंट्स की बात करें तो क्या हो सकता है, शुगर प्लस वाटर. बेसिकली अंदर का जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे अभी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है. तो यहाँ से अगर ग्रेप्स बाहर पानी से अंदर की तरफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का एग्जांपल हो सकता है ये, एंडोऑस्मोसिस. इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोऑस्मोसिस. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हेन आई पुट द ग्रेप्स इन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स NaCl प्लस सोल्यूट. नाउ मैंने क्या देखा कि अगर मैंने यहाँ पे बेसिकली वही था, सेम टू सेम ग्रेप्स में शुगर प्लस वाटर, यहाँ भी कंसंट्रेटेड है, यहाँ भी कंसंट्रेटेड बाहर वाला, बट मैंने बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखी. अगर मान लो यहाँ 1 मोलर कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ 10 मोलर है, तो ये हायर कंसंट्रेशन पे है, अभी ये हायर कंसंट्रेशन पे है. तो बेसिकली क्या होगा, हमें पता ऑस्मोसिस में जो चीज़ें हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. तो यहाँ पे जो है वो सोलवेंट पार्टिकल्स किशमिश के अंदर से, ग्रेप्स के अंदर से बाहर मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ. सो क्या होगा, उसकी वजह से जो है ये श्रिंक करने लगेगा, ये ग्रेप जो है वो श्रिंक करने लगेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सोलवेंट पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इट इज़ एग्जांपल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस. So these are some examples of endo and exoosmosis process.